Welcome class. Welcome to our online English class. Today we are going to discuss one of greatest tragedies of Shakespeare, Hamlet. Full title of Hamlet: The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Author William Shakespeare. Genre tragedy, revenge tragedy. And the play is influenced by Kyd, one of university wits. The play is written in 1599, 1601, and first published in 1603, first folio, and more reliable in version in 1604 and 1623, first folio. First folio was published in 1623. Setting of the play in Denmark, Elsinore Castle. Source of the play: Legend of Hamlet from Saxo Grammaticus, 12th century, retold by Francos de Palforest. And the tragic flaw of the play of the hero Hamlet is indecision and delay in action and excessive intellectual. Themes in the play: revenge versus justice, madness, pain, madness, corruption and decay, appearance versus reality, death, fate and afterlife, action versus inaction. So these are the themes. Language of the play is blank verse, but prose is also written when the scene of madness appears on the stage, and comedy and lower class of pupil speaks in prose. So this question is also important when prose is spoken in the plays of Shakespeare. So in the scene of madness, letters, comedies and lower class of speech. Symbols in Hamlet: ghost, symbol of uncertainty, revenge and blurred between reality and supernatural. Skull of Yorick, reminder of mortality, inevitability of death and futility of earthly pleasures. Poisons represents corruption, betrayal and moral decay. Flowers, Ophelia's flowers, each flower carries meaning. Rosemary for remembrance, fancies for thoughts, symbolizes innocence and madness. So these are some symbols. The play, Mousetrap, symbol of truth exposing guilt, place motif in Hamlet. What is motif? Motifs are recurrent element, ideas or images. जो elements, जो ideas और जो images बार बार आती रहती हैं, उनको बोलते हैं motifs. Suppose that madness, corruption and delay, appearance versus reality, theatrical play within play, play within play. सिंबल्स मैंने आपको शायद पहले ही बता दिए हैं. सिंबल्स तो खैर पहले हो गए हैं. Now let's move on the characters of Hamlet. So Hamlet, whose father was king of
Hamlet, Hamlet, whose father is King of Hamlet, Hamlet's uncle, Claudius means Hamlet's father, King Hamlet, and Claudius are real brothers. And when King Hamlet dies, his uncle Claudius gets married to Gertrude, means mother of Hamlet. Horatio, confidant of Hamlet, best friend and confidant, हमराज. होरेशियो जो है वो हेमलेट का हमराज था. Polonius, another most important character of the play. Polonius has two children. One is son Laertes, who is studying in France, and a daughter Ophelia, who falls in love with Hamlet, जो Hamlet से प्यार करती है. But Hamlet भी करता है, लेकिन he remains every time occupied with the revenge of his father. And Hamlet has also two university friends, Rosencrantz and Guildenstern. These two friends are disloyal towards Hamlet. These two friends, Rosencrantz and Guildenstern, are disloyal friend of Hamlet. So you must have understood about the characters of the play. Now let's move on towards the story of the play. हेमलेट की कहानी शुरू होने से पहले दो घटनाएं हो चुकी. कौन कौन सी? एक तो ये कि किंग ऑफ हेमलेट की मौत हो चुकी है, और उसकी मौत को हुए अभी एक महीना भी नहीं बीता है. और दूसरी घटना ये कि अभी जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि अभी हेमलेट की मौत हुए एक महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन किंग ऑफ डेनमार्क, सीनियर हेमलेट की जो ये पत्नी है गर्ट्रूड, वो शादी करने जा रही है किंग ऑफ हेमलेट के छोटे भाई क्लोडियस से. इस बात को ये लेकर जो हेमलेट है वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है कि उसके पिता की मौत को हुए अभी कुछ ही समय बीता है, लेकिन उसकी जो मां है वो उसके चाचा से शादी करने जा रही है. इस समय डेनमार्क में खुशी का माहौल है. पूरा जो एक महल है वहां पे तो फंक्शन की तैयारी चल रही है. एक तो क्लोडियस के राज तिलक की, मींस कोरोनेशन ऑफ क्लोडियस, और ये दूसरी इसी फंक्शन में जो क्लोडियस है वो हेमलेट की मां मींस गर्ट्रूड से शादी करने जा रहा है. लेकिन क्लोडियस के कोरोनेशन से पहले एक अजीब घटना होती है, और वो घटना ये होती है कि महल के बाहर एक भूत की आकृति, जो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कि मानो किंग ऑफ डेनमार्क हो, भूत की आकृति प्रकट होती है. और महल के बाहर दो रॉयल गार्ड्स पहरा दे रहे हैं, और वो उस भूत की आकृति को वो देखकर स्तब्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं. और वो ये बात को महसूस करते हैं कि जो वो भूत की जो आकृति है वो बिल्कुल ऐसे लग रही है
कि ये जैसे कि मानो किंग ऑफ डेनमार्क हो। अब वो दोनों जो ये संतरी होते हैं, एक का नाम होता है मार्सेलस और एक का नाम होता है बर्नार्डो। इन दोनों कैरेक्टर के नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, हु सीज द घोस्ट ऑफ किंग ऑफ डेनमार्क वेरी फर्स्ट, कि डेनमार्क के राजा के भूत को सबसे पहले किसने देखा था। तो इन दो कैरेक्टर्स के नाम याद रखिए, शायद उस कैरेक्टर के चार्ट में ये नाम नहीं आए हैं। तो एक का नाम मार्सेलस और एक का नाम बर्नार्डो। So these two characters sees the ghost of Hamlet very first. इसके बाद मार्सेलस एंड बर्नार्डो अंदर जाते हैं और वो होरेशियो को बुला के लाते हैं कि देखो कि राजमहल के बाहर एक आकृति है जो बिल्कुल भूत लग रहा है, और वो भूत जो है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो किंग ऑफ डेनमार्क हो। लेकिन अब देखो, इसको भी आप याद रखेंगे, अब तक दो बार जो भूत है वो अपीयर हो चुका है, लेकिन दूसरी बार भी जो भूत है वो कुछ बोलता नहीं है, वो वहां से चुपचाप चला जाता है। बिल्कुल उसी रात महल के अंदर क्लोडियस, सॉरी, नेक्स्ट नाइट, अगली रात क्लोडियस और हैमलेट की मां गर्ट्रूड की शादी होने जा रही है, और साथ ही साथ क्लोडियस का जो कोरोनेशन है, यानी कि जो राज तिलक है, वो होने जा रहा है। लेकिन एक अजीब बात होती है, जब क्लोडियस और गर्ट्रूड की शादी हो रही होती है, जो हैमलेट होता है वो अभी भी अपने पिता के गम में काले कपड़े पहनकर घूम रहा होता है। तो इस बात को लेकर ये क्लोडियस और उसकी मां, ये गर्ट्रूड, they tried to convince Hamlet that he should change his getup, he should change his dress, because it is the auspicious occasion and you are roaming in the dress of lamenting, कि तुम अभी भी विलाप के जो ये कपड़े हैं वो सब पहने हुए हो, एंड यू आर इन द मूड ऑफ lamenting, still you should change your clothes। लेकिन जो हैमलेट है वो उनकी बात ज्यादा कुछ सुनता नहीं है। उसी रात एक बार फिर वो भूत की जो आकृति है वो होरेशियो के द्वारा देखी जाती है, और होरेशियो अंदर जाकर हैमलेट को वो जो है कि बुला के लाता है। अब जो भूत की जो आकृति, यानी कि जो भूत होता है किंग ऑफ डेनमार्क को, वो हैमलेट को थोड़ा सा अकेले में ले जाता है, और वो उसके साथ कुछ बात करता है, और जो बात करता है वो ये करता है कि देखो, मेरी जो मौत हुई है वो किसी सांप वाप के काटने से नहीं हुई है, मेरा तो मर्डर किया गया है तुम्हारे अंकल के द्वारा, क्लोडियस के द्वारा, और मुझे ये लगता है कि जो तुम्हारी जो माँ है वो भी तुम्हारे फादर से, सॉरी, कि वो भी तुम्हारे
जो अंकल हैं ये क्लोडियस, उसके साथ वो भी जो है कुछ मिली हुई है, क्योंकि वो इतनी जल्दी वो शादी भी कर रही है और मेरी मौत को भी 1 महीना भी नहीं हुआ है, और तुम्हारी जो मां है वो तुम्हारे अंकल से शादी करने जा रही है। अब इस बात को सुनकर जो हैमलेट है वो बहुत परेशान हो जाता है। उसी रात एक पोलोनियस जो चीफ एडवाइजर था क्लोडियस का, तो सीन पोलोनियस के ये घर पे शिफ्ट हो जाता है, और वहां पे जो ये पोलोनियस है और उसका जो ये बेटा है ये लेरेट्स, वो अपनी बहन ऑफेलिया को समझा रहा होता है कि देखो जो तुम्हारा ये रोमांस चल रहा है हैमलेट से वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम केवल राजा के एक सेवक हैं, और जो हैमलेट है वो यहाँ का होने वाला वो राजा है। तो जो तो वो बहुत बड़े ये लोग हैं, और तुम्हारा इस प्रकार से रोमांटिकली इन्वॉल्व होना है हैमलेट के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है। नेक्स्ट डे जो हैमलेट होता है वो कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। उसके जो सब कपड़े हैं वो सब अस्त व्यस्त हो रहे हैं, सब बाल सब बिखरे हुए हैं, और कुछ कुछ जो है वो बोल रहा है। इट मीन्स ही इज प्रिटेंडिंग ऑफ मैडनेस, ही इज फेनिंग ऑफ मैडनेस, ही इज एक्टिंग ऑफ बीइंग मैड। वो जो है कि पागल होने का कुछ नाटक कर रहा है, हालांकि वो पागल नहीं है लेकिन वो पागल होने का वो नाटक कर रहा है। और ये बात केवल उसका जो कॉन्फिडेंट है, उसका जो बेस्ट फ्रेंड है होरेशियो, ये बात केवल उसको पता कि जो हैमलेट है वो पागल होने का नाटक कर रहा है। जब ये बात ओफेलिया को पता लगती है कि जो हैमलेट है वो पागल हो रहा है, तो ओफेलिया ये सोचती है, क्योंकि ओफेलिया अब हैमलेट से क्योंकि जो ओफेलिया है वो अब हैमलेट से ज्यादा बात नहीं कर रही, क्योंकि उसके ये भाई ने उसको ये डांटा था कि तुम्हें ज्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है हैमलेट से, तो तुम्हारा ज्यादा ये सब घुलना मिलना तुम्हें शोभा नहीं देता एक राजकुमार के साथ। अब ओफेलिया ये सोच रही है, क्योंकि मैंने हैमलेट की जो एडवांसेस थी, जो प्यार का जो जो रोमांस चल रहा था, मैंने उसको जो है कि मना कर दिया, तो इसलिए जो हैमलेट है वो पागल हो गया। तो ओफेलिया ये न्यूज अपने फादर को देती है, और उसका जो फादर होता है पोलोनियस, वो ये बात जाकर क्लोडियस को बताता है कि देखो तुम्हारा जो ये भतीजा है हैमलेट, वो मेरी लड़की से वो प्यार करता है, और मेरी लड़की ने हैमलेट से हैमलेट को प्यार करने से जो है कि मना कर दिया है, इसलिए तुम्हारा जो ये भतीजा है वो पागल हो गया है। अब जो ये क्लोडियस है वो ये कहता है कि मैं जो है हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का ये बंदोबस्त करता हूं, क्योंकि इंग्लैंड में ही जो हैमलेट है वो पढ़ता था। कहां पढ़ता था? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। इसको भी याद रखेंगे कि हैमलेट कहां पढ़ता था, विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। तो मैं उसको इंग्लैंड में भेजने का बंदोबस्त मैं करता हूं, लेकिन इससे पहले जो ये क्लोडियस है और जो ये पोलोनियस है वो आपस में ये मिलकर एक षड्यंत्र रचते हैं। वो जानना चाहते थे कि आखिरकार हैमलेट वाकई में पागल है या पागल होने का वो नाटक कर रहे हैं। तो वो एक सीन को अरेंज करते हैं, वो एक मीटिंग को अरेंज करते हैं
जहां पर हैमलेट और ओफेलिया के अलावा और कोई ना हो और हम दोनों पीछे, पर्दे के पीछे ये रहकर हम हैमलेट और ओफेलिया की हम बातें सुनेंगे और ओफेलिया जो है वो उससे राज खुलवाने की कोशिश वो करेगी कि क्या हैमलेट वाकई में, क्या हैमलेट वास्तव में पागल हो गया है या केवल बस वो नाटक कर रहा। तो ऐसा ही होता है जब हैमलेट और ओफेलिया की मीटिंग हो रही होती है तो पोलोनियस और ये जो है ये क्लॉडियस वो वो जो है पर्दे के पीछे उन दोनों की बात सुन रहे होते हैं। और यहीं पे, दिस इज द एक्ट थर्ड, यहीं पे जो हैमलेट होता है वो इस कोटेशन को बोलता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। इसी एक्ट में, इसी सीन में, इसी सीन में जो हैमलेट होता है वो ये कोटेशन को बोलता है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और ये एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से एक्ट में हैमलेट ने अपनी मोस्ट फेमस सोलिलोकी को ये बोला था। अब लेकिन जो हैमलेट होता है वो बिल्कुल वही सब पागलपन कर रहा होता है और इसी स्थान पर, इसी जगह वो ओफेलिया को रिबफ कर देता है और उसको ये कहता है, यू शुड बी ए नन एंड गेट योर सेल्फ एनरोल्ड टू ए ननरी, कि तुम्हें अब एक नन बन जाना चाहिए। और जब ये जब हैमलेट और ओफेलिया आपस में बात करना बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं तो क्लॉडियस और ये जो है पोलोनियस ये आपस में ये बात कर रहे हैं कि कुछ पता नहीं लग रहा है, क्या हैमलेट वाकई में पागल हो रहा है या वो पागलपन का वो नाटक कर रहा है। इस बात का पता करने के लिए जो जो ये क्लॉडियस है वो हैमलेट के दो दोस्तों को बुलाता है। मैंने भी आपको दो कैरेक्टर्स के नाम बताए हैं जो हु आर disloyal friends of Hamlet. One is Rosencrantz and second is Guildenstern. इसके बाद जो हैमलेट होता है वो एक नाटक को एक अरेंज करता है स्टेज पर और वो जानबूझकर एक सीन को क्रिएट करता है जहां पर जो ये विलन होता है वो राजा के कान में जहर डाल रहा होता है वो जब सोया रहता है। जानबूझकर जो हैमलेट होता है वो इस प्ले को क्लॉडियस और गर्ट्रूड के सामने स्टेज कराता है। इस प्ले का नाम होता है मर्डर ऑफ गोंजागो, द माउस ट्रैप प्ले, द प्ले विद pantomime acted in gesture विदाउट वर्ड्स। तो ये प्ले ऐसा होता है कि इस प्ले में कोई ये बोलता नहीं है, जैसे होता है ना कुछ कठपुतली टाइप, ऐसे ही बस कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और वो जो कठपुतलियां होती हैं वो उनमें से एक कैरेक्टर की राजा के कान में जहर डाल रहा होता है। तो इस सीन को देखकर जो ये क्लॉडियस है वो बहुत परेशान हो जाता है और इस सीन को देखकर वो कमरे में चले जाता है। और जब वो उस कमरे में जाता है तो वो एक सोलिलोकी को वो बोलता है और उसी सोलिलोकी में ही कन्फेसेस द मर्डर ऑफ किंग ऑफ डेनमार्क। उसी सोलिलोकी में वो एक्सेप्ट करता है कि उसने ही अपने बड़े भाई को मारा है और ईश्वर उसके जो उसके पाप हैं वो उनको माफ करे। जब वो ईश्वर से
प्रार्थना कर रहा होता है तो हैमलेट उसको वहां पे मारने की कोशिश करता है, लेकिन हैमलेट तलवार तो निकाल लेता है, लेकिन उस तलवार को वापस अपनी म्यान में रख लेता है। क्यों? क्योंकि हैमलेट ये सोचता है कि अगर मैंने इस समय अपने चाचा को मार दिया तो मेरा जो चाचा है, इट मींस जो ये क्लॉडियस है, वो शहीद कहलाएगा और मैं एक कावर्ड कहलाऊंगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। तो वो चाचा को छोड़ देता है, वो उसको मारता नहीं है। इसके बाद वो यहां से अपने चाचा को छोड़कर हैमलेट अपनी मां के कमरे में चला जाता है और वहां वो अपनी मां को बहुत कुछ ये सुनाता है और वो अपनी मां को वो जो है वो गुस्से में वो एक कुर्सी पर धक्का दे देता है और हैमलेट का जो अंदर का जो ये गुस्सा था अपनी मां के प्रति, वो बाहर आ जाता है। एंड इन एंगर, इन फ्रस्ट्रेशन, इन हिज पेंट अप रेज, ही थ्रोज हिज मदर टू ए चेयर। वो अपनी मां को एक कुर्सी पर धकेल देता है वो जो गुस्से में, और उसकी मां भी उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि तुम अभी यहां से तुम चले जाओ। इतने में एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हो जाती है। इन मां बेटे की जो बात है वो एक व्यक्ति सुन रहा होता है, और वो व्यक्ति कौन होता है? वो व्यक्ति क्लोडियस का चीफ एडवाइजर होता है। इट मींस पोलोनियस, फादर ऑफ ऑफेलिया। वो इन दो मां बेटों की बात सुन रहा होता है। तो जब हैमलेट को ये बात ये लगती है कि हमारी मां बेटों की बात कोई व्यक्ति सुन रहा है, तो ये समझ जाता है कि ये हो ना हो ये क्लोडियस ही है जो हमारी मां बेटों की बात सुन रहा है। तो वो अपनी तलवार को निकालता है और वो क्लोडियस को मारने के लिए वहां पे चला जाता है, और वो अपनी तलवार को उस पर्दे के पीछे आर पार कर देता है। लेकिन जब वो ये देखता है कि वो क्लोडियस है ही नहीं, वो तो ऑफेलिया के फादर हैं, मींस वो तो जो है कि पोलोनियस है। इस सीन को देखकर उसकी जो मां है बहुत घबरा जाती है, और वो फिर अपनी मां को बहुत कुछ कहता है। लेकिन इतने में एक बार फिर, फोर्थ टाइम, चौथी बार, हैमलेट का जो फादर होता है, उसका जो भूत होता है, यानी कि द घोस्ट ऑफ किंग ऑफ डेनमार्क अपीयर्स, वो एक बार फिर अपीयर हो जाता है, और वो केवल हैमलेट को ही दिखाई वो देता है और किसी को दिखाई नहीं देता है। और ये सब, और हैमलेट जब अपने फादर के भूत से बात कर रहा होता है तो उसकी जो मां है बहुत परेशान हो जाती है, और वो ये सोचती है कि हैमलेट वाकई में पागल हो गया। और वो ये बात किसको बताती है? वो ये बात बताती है क्लोडियस को कि हैमलेट ने पोलोनियस का मर्डर कर दिया है। तो जो क्लोडियस होता है वो हैमलेट को वो बैनिश कर देता है, यानी कि वो हैमलेट को वो डेनमार्क से बाहर निकाल देता है, और उसके साथ वो दो उसके जो जो उसके दो वो फ्रेंड्स थे, रोसेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न, वो उनके साथ भेज देता है। अब जो हैमलेट का जो चाचा होता है क्लोडियस, वो उसके दोनों दोस्तों को एक लेटर को देता है इंग्लैंड के राजा के नाम, और उस लेटर में ये बात लिखी होती है कि जैसे ही हैमलेट इंग्लैंड पहुंचे उसका मर्डर कर दिया जाए। लेकिन रास्ते में ही एक अजीब घटना हो जाती है। रास्ते में ही कुछ पायरेट्स उस जहाज पर हमला कर देते हैं,
और हैमलेट को उस जहाज से बाहर ये निकालकर वो हैमलेट को ये बंदी बना देते हैं। लेकिन रोसेनक्रेंट्ज एंड ये गिल्डनस्टर्न वो इंग्लैंड पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो हैमलेट होता है वो एक चालाकी वो कर जाता है। वो क्या? जो लेटर हैमलेट के चाचा ने, जिस पर ये लिखा था कि हैमलेट जैसे ही इंग्लैंड पहुंच जाए तो हैमलेट का मर्डर कर दिया जाए, तो वो अपना नाम बदलकर अपने दोनों दोस्तों का नाम उस लेटर में लिख देता है। और हैमलेट तो उस जहाज से बाहर आ जाता है, क्योंकि पायरेट्स उसको हॉस्टेज बनाकर ये बाहर ले आते हैं। तो जो ये पायरेट्स होते हैं वो हैमलेट को छोड़ देते हैं कुछ दिनों बाद। लेकिन जब ऑफेलिया को ये बात पता ये लगती है कि उसके फादर को मार दिया गया और हैमलेट को ये बैनिश कर दिया गया, तो वो पागल हो जाती है। शी कीप्स ऑन babbling, she keeps on speaking, and she starts remaining in great dejection. बड़ी उदास उदास बेचारी होने लगती है। और एक पल फिर ये आता है कि जो ऑफेलिया है वो अपने आप को मार डालती है। शी कमिट्स सुसाइड बाय ड्राउनिंग, वो डूब कर मर जाती है। शी कमिट्स सुसाइड आफ्टर ड्राउनिंग। इसके बाद जब ये बात ऑफेलिया के ये भाई, इट मींस जो ये का जो ये भाई था, ये लैरेक्स, जब ये बात उसको ये पता लगती है कि उसके फादर को मार दिया गया हैमलेट के द्वारा और उसकी जो है बहन वो भी जो है कि पागल होकर वो मर गई, तो वो बहुत ये गुस्से में आता है और क्लोडियस से वो फाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो क्लोडियस होता है वो चालाकी से उसको वो पहले शांत करता है और वो एक षड्यंत्र रचता है और ये कहता है कि देखो, अगर तुमने हैमलेट को मार दिया तो बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हैमलेट को यहां की जो ये जनता है वो बहुत प्यार करती है, और अगर तुमने उसको ऐसे मार दिया तो यहां की जो ये जनता है वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं, वो तुम्हें एकदम मार देगी, वो तुम्हारा मर्डर कर देगी। तो मैं तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे और हैमलेट के बीच में एक फ्रेंडली फेंसिंग मैच कराता हूं। फेंसिंग मैच बोलते हैं कि जब हम एक की जो है कि तलवार से हम ये मैच करते हैं, हम लड़ते हैं, हम लड़ने का हम की ढोंग करते हैं कि ये डैगर से या फिर लैपियर से या फिर कि जो है ये तलवारों से, उसको बोलते हैं फेंसिंग मैच। तो मैं एक काम करता हूं कि तुम्हारे और हैमलेट के बीच में मैं एक फेंसिंग मैच रखता हूं और मैं एक काम करूंगा कि मैं तुम्हारी जो ये तलवार है उसकी टिप पर मैं जहर लगा दूंगा, ताकि अगर तुम्हारा हल्का सा भी अगर टच हैमलेट की किसी तो कि अगर तुम्हारी तलवार का जो टिप है, जो नोक है, अगर उसका हल्का सा भी ये टच हैमलेट की बॉडी को छू लेगा तो एकदम वो मर जाएगा। सो हिज डेथ विल बी एक्सीडेंटल, नॉट पर्पसफुली। तो इस प्रकार से ये जो यहां की जो है जो ये है जनता, उसको ये लगेगा कि हैमलेट की मौत एक्सीडेंटली हो गई, ना कि उसका मर्डर हुआ है। अब इस बात से जो ऑफेलिया का जो भाई है, मींस जो पोलोनियस का जो बेटा है ये लैरेट्स, वो राजी हो जाता है। ठीक है, he fell victim to the conspiracy of
क्लोडियस। अब नेक्स्ट डे जब हैमलेट अपने दोस्त होरेशियो के साथ एक ग्रेवयार्ड में वो पहुंचता है, तो वो एक खोपड़ी को देखता है और उस खोपड़ी को देखकर उसको याद आती है कि ये जो खोपड़ी है वो योरिक की है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हैमलेट को किसकी खोपड़ी मिली थी कब्रिस्तान में। तो वो कहता है कि ये जो खोपड़ी है वो योरिक की है। और योरिक कौन था? तो वो कहता है कि योरिक मेरे फादर के दरबार में मेरे वो पिताजी का एक वो जेस्टर था। किसको बोलते हैं जेस्टर? मन बहलाने वाला, एक क्लाउन था। बहुत अच्छा ये व्यक्ति था। इतने में जब वो योरिक की खोपड़ी को देख रहा होता है, तो वो देखता है कि किसी की शव यात्रा आ रही है। उस शव यात्रा के बारे में अभी तक हैमलेट को यह नहीं पता था कि यह शव यात्रा ऑफेलिया की है। लेकिन जब वो लोग वहां पे सब इकट्ठा होने लगते हैं और वो जब ऑफेलिया को दफनाने लगते हैं, तो हैमलेट बहुत दुखी, बहुत परेशान हो जाता है। तो ये देखकर ऑफेलिया का जो भाई है वो हैमलेट से उसी ऑन द स्पॉट लड़ाई शुरू कर देता है। वो उससे लड़ना शुरू कर देता है। लेकिन हैमलेट ऑफेलिया के भाई वो लैरेट्स को ये बोलता है कि देखो, मैं ऑफेलिया के 40 भाई से ज्यादा मैं ये जो है तो ये प्यार करता हूं। अब वहां से हैमलेट फिर भाग जाता है, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वॉन्टेड बाय डेनमार्क सोल्जर इन द चार्ज ऑफ Polonius murder. Now the match starts, but Claudius, shrewd man, cunning man, he also makes a second plan to kill Hamlet. He makes a poisonous drink. वो एक ड्रिंक को बनाता है और उसमें वो कुछ जहर की बूंदें डाल देता है, ताकि जब बीच में अगर हैमलेट थक जाए तो वो ये ड्रिंक पी ले और वो ये मर जाए। अगर वो लैरेट्स की तलवार से भी अगर वो जो है कि बच गया, तो इस पॉइजनियस जो ये है ड्रिंक, इससे तो वो मर ही जाएगा। तो वो एक सेकंड प्लान भी बना के वो रखता है। अब मैच स्टार्ट होता है। जो ये लैरेट्स होता है वो हैमलेट को थोड़ा सा वो जख्मी कर देता है। अब क्योंकि बिकॉज इट वॉज द पॉइजनियस टिप, क्योंकि उस तलवार में जहर लगा था, तो जो हैमलेट होता है वो जख्मी हो जाता है और कुछ ही देर में एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली दोनों की जो ये सब तलवारें हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। इट मींस अब क्या होता है कि जहरीली जो है तलवार वो अब हैमलेट के पास चली जाती है। और अब हैमलेट जब जीत रहा होता है, तो जो हैमलेट की जो मां होती है गर्ट्रूड, जब हैमलेट्स के जो ये पॉइंट्स है वो थोड़े से टोस्ट होने लगते हैं, यानी कि वो थोड़े से कुछ बढ़ने लगते हैं, तो हैमलेट की जो मां होती है वो एक्साइटमेंट में उस पॉइजनियस ड्रिंक को पी जाती है और उसको पीने के बाद वो अब चिल्लाने लगती है कि देखो, धोखा हुआ है और ये ड्रिंक में जहर था। अब हैमलेट जब ये देखता है, क्योंकि अब थोड़ा सा इंजर्ड उसी जहरीली तलवार से जो ये लैरेट्स है वो भी हो जाता है, और अब वो सारा राज खोल देता है हैमलेट के सामने।
और हैमलेट की मां जो है वो पॉइजनियस ड्रिंक को पीकर मर जाती है और ये लैरेट सारा राज खोल देता है कि कैसे कैसे आई फेल विक्टिम टू योर अंकल क्लोडियस, इट वॉज होल प्लान ऑफ योर अंकल क्लोडियस। और अब जो हैमलेट होता है वो अपने अंकल क्लोडियस को फाइनली मार देता है। he ripped his he stabs his sword to his uncle क्लोडियस। अब स्टेज पर हैमलेट की मां भी मर जाती है, जो ये लैरेट्स है वो भी मर जाता है, और हैमलेट का जो दोस्त होता है होरेशियो वो भी मरना चाहता है वो जो पॉइजनियस जो वो एक है ड्रिंक उसको पीकर। लेकिन जो हैमलेट ये कहता है अपने वो दोस्त से कि दोस्त अगर तुम भी चले गए तो मेरी इस कहानी को इस दुनिया के सामने कौन लाएगा, तो तुम्हें जीना पड़ेगा ताकि मेरी ये कहानी जो है वो दुनिया के सामने आ सके। और फिर ये बात कह के हैमलेट मर जाता है और यहीं पे ड्रामा खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन द इंपॉर्टेंट डायलॉग्स ऑफ हैमलेट। Very first, we shall deal with soliloquies. 7 great soliloquies spoken by Hamlet. First is, oh, that this too solid flesh would melt. In this soliloquy, Hamlet wishes his suicide. He wants to commit suicide. That this too solid flesh would melt. So this soliloquy reveals his depression and disillusionment with life. Second, oh, all you host of heaven, oh earth, what else? This soliloquy appears in Act 1, Scene 5th, and with this soliloquy, Hamlet swears revenge. वो कसम खाता है क्लोडियस को मारने की और अपने पिता का ये बदला लेने की। So this is second soliloquy. Oh, all you host of heaven, oh earth, what else? Third soliloquy. What a rogue and pleasant slave am I. Hamlet compares himself to the player who shows emotion for fictional stories. तो इस लाइन में जो हैमलेट है वो अपने आप की कंपैरिजन स्टेज के एक्टर से करता है और वो ये कहता है कि हैमलेट तो अपने फादर के लिए शोक भी नहीं कर सकते हैं। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कोटेशन है, ये जो सोलिलोकी है वो एक्ट 3 सीन 1 में आती है। और कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये किस एक्ट में आती है। द मोस्ट फेमस सोलिलोकी, Hamlet debates suicide, whether life is suffering is worth enduring or if death is preferable. वो ये सोचता है कि मैं अपने फादर का बदला लूं या ना लूं। क्यों? Because he was stranded, he was stuck between the code of religion and the code of honor. क्योंकि वो फंसा रहता है कि अगर मैंने अपने चाचा से बदला ना लिया तो मैं एक कॉवर्ड कहलाया जाऊंगा, और अगर मैंने अपने चाचा को मार दिया तो इट मींस मैं एक मर्डरर कहलाया जाऊंगा। तो वो इस बीच में बहुत ज्यादा उलझन में होता है कि मैं अपने पिता का ये बदला लूं या ना लूं, टू बी और नॉट टू बी। फिफ्थ जो है सोलिलोकी, it is now the very witching time of night. Hamlet prepares himself for action after staging the mousetrap play to catch Claudius' guilt. ये सोलिलोकी उस समय होती है जब वो
स्टेज पर एक नाटक को वो दिखा रहा होता है, और वो जब वो सीन आता है तो उस सीन को देखकर फिर हैमलेट को पूरा यकीन हो जाता है कि हाँ, मेरे चाचा ने ही मेरे फादर की हत्या की है। नाउ माइट आई डू इट पैट, नाउ ही इज प्रेइंग। ये जो सोलिलोकी है ये कब आती है? जब जब हैमलेट के चाचा, इट मींस ये क्लोडियस, प्रार्थना कर रहे होते हैं और वो अपने चाचा को मारने वाला होता है, लेकिन वो ये कहता है और वो फिर एक बार फिर अपने इस एक्शन को प्रोक्रेस्टिनेट कर देता है, और वो ये कहता है कि अगर मैंने अपने चाचा को अभी मार दिया इस हालत में, वो जब प्रार्थना कर रहा है, तो मुझे लोग एक कावर्ड कहेंगे और मेरे चाचा को लोग शहीद कहेंगे। 7 soliloquy. How all occasions do inform against me. Hamlet reflects on 14 brass. इस कोटेशन में जो हैमलेट है वो ये कहता है कि देखो, एक तरफ तो 14 ब्रास है, 14 ब्रास जो बाद में ये जो है कि डेनमार्क का राजा बन जाता है। देखो, एक तो ये 14 ब्रास है जो अपने पिता का ये जो है कि बदला लेने के लिए इतना उत्सुक है। एक मैं हूं, मैं अपने पिता का मैं बदला ले ही नहीं पा रहा हूं। और हाउ ऑल ओकेजन्स डू इन्फॉर्म अगेंस्ट मी, सो हैमलेट रिजोल्व्स टू एक्ट बोल्डली लीडिंग टू द ट्रेजिक क्लाइमैक्स। तो इसी इसी 7th सोलिलोकी से जो हैमलेट है वो पक्का इरादा कर लेता है। यहां पे ये 7 हमारी जो ग्रेट सोलिलोकी है वो खत्म हो जाती है। अब आता है इंपोर्टेंट ये डायलॉग्स। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, एक्ट 1 सीन 2 में आते हैं। हैमलेट लेमेंट्स Gertrude's weakness for remarrying quickly after his father's death. तो ये जो कोटेशन है बहुत फेमस है। फ्रेलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेलिटी? वीकनेस। ऑफ फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, की है कमजोरी, तुम्हारा दूसरा नाम औरत है। सेकंड, and this is also most famous dialogue, and this dialogue is spoken by Marcellus, who very first sees the ghost of King of Denmark. Something is rotten in the state of Denmark, कि कुछ ना कुछ तो करप्शन डेनमार्क में हो रहा है। The time is out of joint, O cursed spite that ever I was born to set. Third dialogue, the time is out of joint, O cursed spite that ever I was born to set it right. ये होती है ये, तो ये जो है डायलॉग हुआ था एक्ट फर्स्ट में। सीन 5th में हैमलेट रियलाइजेस destiny has chosen him to restore order by avenging his father. Neither a borrower nor a lender be. ये जो एक डायलॉग है वो पोलोनियस अपने वो बेटे वो अपने जो है कि बेटे लैरिट्स को एक एडवाइस वो देता है कि ना तो हमें किसी से पैसा लेना चाहिए और ना ही किसी को उधार देना चाहिए। 7 काफी इंपोर्टेंट है। देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो, कि इस दुनिया में ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। ये जो मोस्ट फेमस ये डायलॉग है वो हैमलेट बोलता है, किससे? अपने दो डिसलॉयल फ्रेंड्स से, रोसेनक्रेंट्स एंड गिल्डनस्टर्न। There is nothing good or bad in this world, but our thinking make it so. The play is the thing wherein I will catch the conscience of the king. ये जो एक डायलॉग है वो माउस ट्रैप प्ले यानी कि प्ले ऑफ गोंजागो, ये सॉरी मर्डर ऑफ गोंजागो के एकदम बाद होता है, जब हैमलेट को ये बात पता लग जाती है उस सीन के बाद कि हाँ, मेरे ही अंकल ने मेरे फादर की मौत यानी कि मर्डर किया है। तो बोलता है द प्ले इज द थिंग वेयर आई विल कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग। मैडनेस इन ग्रेट वंस मस्ट बी अनवॉच्ड गो, ये बोलता है क्लोडियस जब वो हैमलेट के पागलपन पर शक करता है कि मैडनेस इन ग्रेट वंस
कि जो महान लोग होते हैं उनकी मैडनेस पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ओ शेम वेयर इज दाई ब्लश, ये जो सीन है वो हैमलेट बोलता है किसको, अपनी मां गर्ट्रूड को, फॉर हर इमोरल मैरिज, हैस्टी मैरिज। ओ शेम वेयर इज दाई ब्लश, कि हे शर्म तुम्हारी शर्मोहया कहां पे चली गई। ठीक है, the rest is silence, and this is the final words of Hamlet himself. The rest is silence. And this is also one of most important dialogue which is spoken by Hamlet to Rosencrantz and Guildenstern. What a piece of work is a man, how noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving, how express and admirable in action, how like an angel, in apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animal. And yet to me, what is this quaintness? And what is this quaint essence of dust? Man delights not me, nor woman neither. ये जो एक डायलॉग है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दी है। वो कहता है कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज ए मैन, वो कहता है कि ह्यूमैनिटी यानी कि जो इंसान है वो ईश्वर की सबसे अच्छी आकृति है। हाउ नोबल इन रीजन, हाउ इनफाइनाइट इन फैकल्टी, कि जो आदमी है उसके अंदर असीम इंटेलेक्चुअल शक्तियां हैं, दैट सीम्स लिमिटलेस, इन फॉर्म एंड इन, इसकी हर लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन फॉर्म एंड मूविंग, हाउ एक्सप्रेस एंड एडमायरेबल, मैन इज मैन्स बॉडी पोस्चर एंड फिजिकल ग्रेस आर एडमायरेबल, कि जो इंसान है उसका हर जेस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन एक्शन हाउ लाइक एन एंजल, इन एप्रीहेंशन हाउ लाइक ए गॉड। तो वो कहता है कि इन एक्शन ह्यूमन कैन एक्ट नोबली, कि एक इंसान एक ऐसा प्राणी है जो ईश्वर की तरह जो है वो काम कर सकता है और ईश्वर की तरह ये बर्ताव कर सकता है। द ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, द पैरागन ऑफ एनिमल, जो इंसान होता है वो इस क्रिएशन का सबसे बेहतरीन एक वो नमूना है, सुपीरियर टू ऑल एनिमल, और इस संसार में जितने भी क्रिएचर हैं सबसे ज्यादा सुपीरियर है। एंड येट टू मी व्हाट इज दिस क्विंट एसेंस ऑफ डस्ट, लेकिन मेरे लिए ये जो इंसान है वो कुछ भी नहीं है, वो केवल एक बस मिट्टी के समान है। तो ये जो एक कोटेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। Now let's look at some important questions of the play. Who is the first character to see the ghost in Hamlet? मैंने अभी आपको बात कही थी कि स्टेज पर हैमलेट को सबसे पहले कौन देखता है, मार्सेलस एंड बर्नार्डो। कभी कभी मार्सेलस एंड बर्नार्डो साथ साथ भी आ जाते हैं। Where does Hamlet give his famous to be or not to be? मैंने अभी आपको ये बात बताई थी कि हैमलेट की फेमस कोटेशन टू बी और नॉट टू बी कहां पे होती है, एक्ट 3 सीन 1 में। Who says the line something is rotten in the state of Denmark? मार्सेलस, क्योंकि जब वो किंग ऑफ डेनमार्क के भूत को देखता है तो वो ये लाइन बोलता है, समथिंग इज rotten in the state of Denmark. What is the formal name of play Hamlet stages to catch the conscience of the king? उस प्ले का नाम क्या होता है जो प्ले हैमलेट अपने चाचा के सामने वो रखता है, वो ये रखता है, उसका नाम होता है द मर्डर ऑफ गोंजागो। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था। वेयर इज पोलोनियस किल्ड, मीन्स पोलोनियस कहां मारा जाता है। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब हैमलेट अपनी मां से हॉट टॉक कर रहा होता है तो वहीं पे उस पर्दे के पीछे जो पोलोनियस जो है वो छुपा होता है, और हैमलेट ये सोचता है कि इस पर्दे के पीछे मेरा जो चाचा है
ये जो है ये क्लॉडियस वो छिपा है, लेकिन वास्तव में वहां पे ऑफेलिया का जो फादर था मींस पोलोनियस वहां छिपा होता है। ठीक है। Which character leads in invading army and appear at the end of the play to claim the throne? लास्ट में डेनमार्क का राजा कौन बनता है? 14 ब्रास। हाउ डू रोसेनक्रेंस एंड गिल्डनस्टर्न डाई? मैंने अभी आपको बात बताई थी कि जब हैमलेट अपने इन दो दोस्तों के साथ इंग्लैंड जा रहा होता है तो हैमलेट क्या करता है, उस लेटर में फोर्जरी कर देता है। उस लेटर में अपने नाम के स्थान पर अपने इन दोनों दोस्तों का नाम रख देता है, और जैसे ही ये दोनों दोस्त इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उनका मर्डर कर दिया जाता है। ये बात मैंने अभी आपको ये बताई थी। Who survives to tell Hamlet's story at the end of the play? कि इस प्ले में कौन बचता है हैमलेट की स्टोरी को ये बताने के लिए? कौन बचता है? होरेशियो। Which two characters are often read as foils? foils का यहाँ पे जो है ये की मीनिंग है वो होता है अपोजिट। कि कौन से दो कैरेक्टर हैं जो बिल्कुल अपोजिट थे हैमलेट के? तो एक तो था फोर्टिनब्रस और एक था लेरेट्स। क्यों ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि फोर्टिनब्रस भी अपने फादर का वो बदला लेना चाह रहा था, और जो लेरेट्स है वो भी अपने फादर और अपनी बहन का बदला लेना चाह रहा था जल्द से जल्द। और दूसरी तरफ हैमलेट है, वो अपने फादर का बदला बार बार पोस्टपोन कर रहा था। तो इसीलिए इन दो कैरेक्टर को फोर्टिनब्रस एंड लेरेट्स, इनको अपोजिट माना जाता है किसका? हैमलेट का। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। Who is described as are sometimes who is described as are sometimes sister now are queen? The opening। किसको प्ले में ये कहा जाता है कि कभी सिस्टर कह के पुकार, लेकिन अब कभी सिस्टर कहकर पुकारा जाता था, लेकिन अब वो हमारी रानी है। किसको? गर्ट्रूड को। कौन कहता था? Claudius। Who is the gentleman that Claudius orders to spy on Laertes in Paris? ये भी क्वेश्चन काफी बार आता है कि जो ये क्लोडियस है, तो ये गलती है। यहां पे होना चाहिए, सॉरी, जो है कि पोलोनियस। कि पोलोनियस किसको अपने बेटे के ऊपर जांच करने के लिए वो भेजता है? उसका नाम है रेनाल्डो। द लाइन प्ले इज द थिंग वेर इन आई विल कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग, ये किस में आता है? ये एक्ट थर्ड में होता है। Who utters frailty thy name is woman? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सब है तो ये पता होगा। हैमलेट बोलता है लाइन। Which character says though this be madness yet there is method in it? ये बोलता है पोलोनियस कि हालांकि पागल तो हो रहा है हैमलेट, लेकिन इसमें भी वो कहीं ना कहीं वो कुछ छिपा रहा है। Which character speaks the line get thee to nunnery? ये लाइन हैमलेट बोलता है ओफेलिया को जब पोलोनियस और ये जो है कि ये क्लॉडियस उनकी एक मीटिंग फिक्स कराते हैं। तो ये लाइन उस समय ये बोलता है, कौन बोलता है? हैमलेट बोलता है। किसको? ओफेलिया। कि तुम्हें तो अब कि तुम्हें नन बन जाना चाहिए। हैमलेट टू ओफेलिया, योरिक's skill is primarily a symbol of death's inevitability. Which image repeatedly conveys the idea of moral and political
corruption in Hamlet, disease, rot, and poison. Which इमेज रिपीटेडली कन्वेज, कौन कौन सी इमेज जो बार बार ये जो है कि दिखाती है कि ये डेनमार्क में बहुत करप्शन हो रहा है. डिसीज, रॉट एंड पॉइजन. Ophelia's flowers are symbolic. Which of these is not commonly associated with her bouquet? Laurel, रोजमरी, उसके बालों में रोजमरी का फूल भी लगा होता है और पेंसीज का फूल भी लगा होता है, लेकिन जो लॉरेल है इसका फूल नहीं लगा होता, जो विक्ट्री का साइन है या फिर सिंबल है. Laurel, the ghost in Hamlet, function as a symbol of the unresolved past and demand for justice. The motive of appearance versus reality is best exemplified by all the above: the ghost, physical appearance, Rosencrantz and Guildenstern's friendly face but spying role, Hamlet's public grief वर्सेस प्राइवेट थॉट. ये जो थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ये आपको जो है कि रेनेसा के हर ड्रामा में मिलेगी. हैमलेट्स कंटेम्पलेशन ऑफ योरिक्स स्कल मोस्ट स्ट्रांगली एम्फेसाइजेस व्हिच फिलोसॉफिकल कंसर्न, मोरालिटी एंड ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट. तो जो जब हैमलेट योरिक की खोपड़ी को वो देखता है तो उसकी जो वो खोपड़ी है वो किस बात का वो है जो है तो एक सिंबल है वो है इंसान का जो ये जीवन है वो एक ट्रांजिएंट है, यानी कि वो केवल एक क्षणभंगुर जीवन है, यानी कि वो एक मोर्टल जीवन है. तो इसी बात का वो एक सिंबल है. Dramatic irony is frequently employed in Hamlet to make the audience complicit in the deception. Complicit का अर्थ होता है कि involve, कि जो ये ड्रामेटिक आयरनी यूज हुई है हैमलेट में ये बार बार, वो उसका के पीछे का उद्देश्य क्या है? उसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो ऑडियंस है वो भी वो धोखे में इन्वॉल्व रहे जिस धोखे में हैमलेट रहता. The alternation of soliloquy and action in Hamlet primarily serves to offer psychological access to Hamlet's thought and intensify the tragic dilemma. कि अगर हम हैमलेट की उन 7 सोलिलोकीज को हम ये देखें तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? उसके पीछे का उद्देश्य यह है कि हम हैमलेट के माइंड को अच्छे से समझ सकें, हम उसकी सोच, उसके जो थॉट्स हैं उसको हम अच्छे से समझ सकें. The language of Hamlet is notable for its combination of ब्लैंक वर्ड्स एंड प्रोज. मैंने अभी आपको जो है तो ये बताई कि हैमलेट की जो लैंग्वेज है उसमें जो मैड सीन है या लेटर्स हैं या फिर जो लो कैटेगरी के जो लोग हैं जो वो बात करते हैं वो प्रोज में करते हैं. तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं और भी हैं. हाउ डज क्लोडियस किल किंग हैमलेट? तो जो ये क्लोडियस है वो कैसे मारता है? आपको अभी मैंने जो है तो ये बताया कि जो क्लोडियस है वो हैमलेट को इसलिए मारता है, वो ऐसे मारता है कि वो अपने बड़े भाई के कान में जहर डाल देता है. एक प्रकार का एक जो है तो ये पौधा था हॉबनॉब के नाम का,
वो उसका जहर निकाल कर उसके अपने वो जो है कि बड़े भाई के कान में डाल देता है। विच क्रिटिक डिस्क्राइब्ड एज द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। कौन से क्रिटिक ने हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा है? इसको कहा है तो ये किसने कहा है? विल्सन नाइट ने कहा मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। किसको? हैमलेट को। विच क्रिटिक कॉल्ड हैमलेट एन आर्टिस्टिक फेलियर। कौन से क्रिटिक ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा है? टी.एस. इलियट ने कहा। Who survives at the end of Hamlet to tell the story? ये भी आपको बताया, ठीक है। So thank you for watching this video, and if you want to take online daily class for UGC NET, you can contact on this. So we shall meet in our next video. Till then, bye bye.